All right, everyone. Hope you all are doing a great job. This is Mohammed Bilal, and today we're gonna start the class now. Acha, can you just please give me a little introduction of yourself? I mean, the ones who has already done yesterday. Apart from that, I mean, the people who are new to this training. If you can just, one by one, raise your hand and just introduce yourself. What's your name? What's your last qualification? And what have you been doing? And what are you looking for in this training? Talha, please introduce yourself. Assalamu alaikum, sir. Are you listening me, sir? Yes, I am. My name is Talha Omar. I am from Arifala. I am currently doing Shopify and graphic Okay. designing. I joined this course. I have joined this course to polish my skills on Upwork, especially, and to increase my communication skills. Thank you, sir. Wonderful. So you already have a skill to sell. So no problem. We're gonna help you out in that. Okay. All right. Mir Hamza, we know about you because we spoke yesterday about you. Anyways, okay. Actually, what I was thinking, like, if there is somebody from abroad, I mean, from any other country, or all of you are from Pakistan. Assalamu alaikum. I am Shazia Andili. Actually, I have a problem in writing my name. It's automatically changed into iPhone. I just write it once and again. I'm from Norway, and All right. I have got my education from Oslo Metropolitan University in Mm-hmm. science and mathematics. Okay. And Wonderful also, to I know. have my last education is master's in planning and management. Right now, I am working as a project manager on social media and as well as for women and children group in Oslo. Wonderful to know that. I worked for Telenor, and the head office is also in Norway. So I hope you know that. Wonderful. Where in Norway? And not in Norway. Actually, they have the head office is in Norway, but I worked in Pakistan. Okay, so you have been controlled from Norway. Yeah, Do the you company mean? actually they operated their business in Pakistan, so I was working with them as a manager, sales and distribution. Very Anyways, nice pleasant. hearing. Uh-huh. Pleasant to Again, nice. hear it. Yeah, thank you so Yes. much, Neem here. Okay, so let's start the meeting. What I was asking actually, why I was asking for the introduction, a little bit about yourself, because I know the audience from where to start, and then there's always some norms that one set prior to the training starts. What you guys are comfortable with? I mean, do you want me to come with mix English and Urdu, or do you guys want to keep this only English? So whatever you people will be comfortable, I can go with that. Actually, as I know that most of the people are from Pakistan, so for the convenience of the participants, it will be good if you use both the languages. Yeah, that'll be perfect. That'll be perfect. Okay, all right. Yes, I So just recommend it, but you can ask others. the people that I spoke with yesterday, I think we should continue with both languages. I mean, only English won't work in the start. But after 15, 20 days, the people will be very comfortable talking in English. अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो इससे पहले की ट्रेनिंग्स हैं, मेरा ट्रेनिंग का जो मोड होता है, दैट इज नॉट समथिंग कि मैं रिटर्न में कुछ प्रेजेंटेशन आपके पास लेके आऊंगा और मैं आपको प्रेजेंटेशन से गो थ्रू करवा के चला जाऊंगा, फिर आपको समझ कुछ नहीं आएगी। इट्स ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन। मैं असाइनमेंट्स भी देता हूँ डेली बेसिस पे। पहले हम आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी के ऊपर काम करेंगे, फिर हम आपकी जो एक्सेंट की ट्रेनिंग है वो करेंगे कि नेटिव्स जो हैं वो कुछ वर्ड्स को कैसे बोलते हैं। कुछ वर्ड्स आपने चेंज करने हैं, आई मीन 50 to 100 वर्ड्स या उससे भी कम। तो वो आपकी जो अमेरिकन एक्सेंट है वो आपकी यूज टू होना शुरू हो जाएगा आपकी कम्युनिकेशन के अंदर, सही है। बट वन हैज टू बी फ्लुएंट। अगर मैं स्टार्ट करूँ ना कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर लाइव्स। सो कम्युनिकेशन के मोड्स मुझे बता सकते हैं आप लोगों में से कोई कि कम्युनिकेशन किस किस टाइप की होती है? Sir, can I tell you?
Yes, please go ahead. It can be verbal and body language and written and digital. Now in the new latest, I'm just aware of these four types. Okay, all right, wonderful. Anyone else? I mean, any other person who can tell any other? कोई और बंदा बताना चाहे तो बता सकता है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, डिजिटल, ये तो हो गई. Uh, I think one more, sir, like eye contact, eye communications. Eyes communication, okay, okay. Anything Good. else? So let me tell you all types of communication, because most of you are aware only with 2 to 3 or 4 maximum the ways like the communication works. But there are, actually more than this types of the verbal communication, then the non-verbal communication, then the visual communication, like you said, like the body language, eyes contact and expressions, gestures, postures. So all these are actually the the visual communication. What is it called? Visual communication. Then there is written communication. I mean, that you read from the books and social media, WhatsApp, Facebook. So that's called, visual. Written communication. Then there is a listening communication as well. I think some of you would be surprised to hear this. Like there is a listening communication also, but there's also listening communication, and that process actually works when interpret the message during the communication. I mean, somebody is talking to you and you're listening, and when you interpret that communication, so that means this is listening communication. So this is the type of the listening communication. Then if I go to there is another one, that's the formal communication. There is one informal communication. The formal that we use in the written formats, in writings, in books, in novels, and all that you do. That's kind of a formal. Then there is the informal or the casual that we usually do in our Urdu, Punjabi, English. So these are the informal, and then there's a digital communication, the one Shazia said. The digital communication is basically emails, messages, then the use of other digital platforms if you're communicating to somebody. So that's called digital communication. So these are actually the 8 types of the communication: verbal, non-verbal, visual, that includes the body language, eye contact, gestures, postures, and everything. Then there is listening, then there is formal, informal, and digital. So these are the communication. Okay, so why the communication is important? Can somebody tell me, like, why the communication is so important? Excuse me, sir. There is one point more, if I'm allowed to tell. Yes, please go ahead. I remember there is one more communication type. It's spiritual communication. Don't go towards that. The people will change their beliefs. Already this is a big business in Pakistan right now. So the people, they are going to the mazars and darbars, and those people are making a lot of money. So I don't want to go with that. Okay. Yes, it is. But I just remember it. Yes. But as far as the question is that why communication is important, it's important to tell our meaning and to give messages and. Anybody else? Okay, Shazia is so communicative, participative. I want everyone to participate like that. Yes. Because once you'll participate, आपकी hesitation दूर होगी, आपको बोलने का मतलब आपकी जब involvement होगी तो आप जल्दी चीजें pick कर लेंगे, जल्दी सीख लेंगे चीजें आप. So I request every one of you to be engaged and participative in this session. Nobody else? I have so many people connected. I mean, 12 people are connected, and only we 2 are speaking. So you guys believe in only listening part of the listening type of the communication, right? Anyways, I'll touch every one of you. So be ready, because I'm not gonna let you just to listen this, because that way this training is not gonna work. I mean, you guys not gonna pick up what we are actually trying to give you from this training. So मुझे आप सबकी involvement, engagement इसके अंदर चाहिए. So whenever आप अगर किसी जगह बैठे हैं तो कोशिश करें कि separate कोई जगह ले लें
ताकि अगर आपके साथ कोई लोग बैठे हैं तो आप उनके सामने हेजिटेशन फील ना कर रहे हो, या फिर आप जो है गाड़ी है, गाड़ी में जाके बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारी ये क्लास तकरीबन घंटे 1.5 घंटे की हुआ करेगी डेली बेसिस पे। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी कम्युनिकेशन है, वो इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की। आपको पता है कि आप किसी को भी अपना कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, कोई आइडिया देना चाहते हैं, कोई इमोशंस अपने बताना चाहते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, टू वे, आई मीन कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने किसी के साथ शेयर करनी है, कोई रिलेशनशिप आपका बिल्ड करना है, या कोलैबोरेट करना है किसी के साथ आपने, या किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनना है, कुछ भी करना है। सो दैट मीन्स कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर स्ट्रांग होगी तो आप इन तमाम चीज़ों में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और अगर आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स अच्छी नहीं है, तो ये जितनी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं, इनमें से किसी ना किसी जगह पे जाके आप जो है वो रुक जाएंगे, आप वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो आपसे एक्सपेक्टेड है। सो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस ऐसे ही है. Yeah, we have seen so many people in our lives, the salesman on, the shops or somewhere. Even if some of you have traveled in the public transport, so you might have seen some people that come in to sell some things. And there are some people who are very intelligent and they, sell with their techniques. And there are some people like who are not experts, so they are not getting more sales. Guys, just give me a second. Actually, my little daughter, she was making noise, so I just had to ask her like to stop. Okay, so what I was telling you guys is कि आपने जब कम्युनिकेट करना है, अगले को आपका मैसेज समझ आना चाहिए। और जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी जेस्चर्स जो हैं, आपका आई कांटेक्ट, आपका सिटिंग, ये चीज़ें हम डिटेल में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर आप अपना मैसेज कम्युनिकेट सही राइटली नहीं कर पाते हैं, सो इट मीन्स कि आप चाहे कितनी भी स्किल आपके पास है, so that skill is not going to work for you. So if you want to get out of your skill a lot, so that means you have to be perfect with the communication. I know so many people in my training. Some of the screenshots with all of you. Like you guys can do this. मैंने एक example दी थी. She is a ladies tailor, a stitcher. He is also learning English, and he is doing great job, mashallah. He also not only learned this English training, but also he went for the Power BI. That's a very technical skill, and he's very good in visuals. So if your intent is positive, and if you really want to do something in your life, you have to give a little time to yourself. You have to, come out of your comfort zone. And once you're out of comfort zone, you're giving your best efforts. No reason like you'll be left behind. Allah Almighty has already promised, like you will be getting. मेरी आप लोगों से जो रिक्वायरमेंट है इस ट्रेनिंग के, अभी हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है. दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू गाइस बिफोर द ट्रेनिंग. सो जो आप काम करना है, मैं आपको डेली की एक असाइनमेंट दिया करूंगा, जिस असाइनमेंट को आपने नेक्स्ट डे में आगे कंप्लीट करके लाना होगा और सबके सामने प्रेजेंट करना होगा. सो इट इज नॉट काइंड ऑफ कि आप एक दिन क्लास लेके क्लास लेंगे फिर क्लास लेंगे. नहीं, ये होगा कि जो चीज हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें परफेक्ट होंगे, फिर आगे मूव करेंगे. जो चीज हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे. So this way you guys are gonna get I mean the practical things in your mind, and you'll be getting what we're talking about. So हमने इम्पोर्टेंस जान ली. इम्पोर्टेंस क्या होती है, कम्युनिकेशन की टाइप्स कितनी होती हैं, फिर हमने बात कर ली कम्युनिकेशन जो है वो मतलब देसी या लेमैन लैंग्वेज में हम किसे कहते हैं कि अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचा देना. इस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे आप वो बॉडी जेस्चर से बता दें, आप जो है वो किसी विजुअल से बता दें, आप जो है वो किसी को कोई सिग्नल के थ्रू या बोल के बता दें. सो दैट इज अ टाइप, मतलब कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन ही है. अब इसमें होता क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात होती है जी. इफेक्टिवली कौन कम्युनिकेट कर सकता है? जो छोटे लफ्जों में बड़ी बात समझा दे, दैट इज काइंड ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. और जो अगले को समझा दे बात. अब सम टाइम ऐसा होता है कि आप समझते हैं कि मैंने बड़ा इफेक्टिवली बोला है, लेकिन अगले बंदे को समझ नहीं, तो दैट इज नॉट इफेक्टिव, चाहे वो छोटा सा सेंटेंस आपने बना के बता दी है. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस. और यही सबसे बड़ी लोग मिस्टेक भी करते हैं जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं किसी जॉब पे. तो वो जो उन्हें आता होता है वो समझते हैं कि नेक्स्ट बंदे ने यही सुना है, वो उसको सुना के वापस आया. दे डोंट अंडरस्टैंड द ऑडियंस, even if it is interviewer or all you need to know who is sitting on the other side of the table, and you need to go by that person. So if I talk about this more, तो हम लोग इसको start करेंगे because we have
मिक्स काइंड ऑफ पीपल। सो हमें जो है वो सबको साथ लेके चलना है। सो जिस तरह अरबी का कायदा आप किसी के पास पढ़ने के लिए जाते हैं ना, या कोई भी इस्लामिक, तो उसमें सबसे पहले आपको सबसे उनकी बेसिक बुक पढ़ाई जाती है, ताकि आपके जो सेलेबल्स जिन्हें हिज्जे कहते हैं वो आपके सही हो जाएं, ताकि नेक्स्ट चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। सो सबसे पहले हम ABC से स्टार्ट करेंगे। हमारी ABC ठीक होगी विद अमेरिकन नेटिव पीपल, तो हमारी आगे इंग्लिश में हमें बोलना आसान हो जाएगा। आप आज के सेशन के बाद ही अपने आप में काफी सारी तब्दीली महसूस कर रहे होंगे। दिस इज व्हाट आई प्रॉमिस। और आप कहेंगे अच्छा ये भी होता था। सो हाउ द अमेरिकन पीपल, क्योंकि अमेरिका की जॉब्स ज्यादा आती हैं, ब्रिटिश जो हम थोड़ा जोर दे के बोलते हैं इंग्लिश के ऊपर, अमेरिकन एक फ्लो के अंदर बोलते हैं, और मोस्टली जॉब्स अमेरिकन होती हैं। सो और अमेरिकन इंग्लिश ज्यादा चलती है इंटरनेशनली, सो वील गो विद अमेरिकन एक्सेंट। सही है। अब इसमें जो वो ए है उसको ए पढ़ते हैं, ए। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे ए ही पढ़ेंगे वो ए, लेकिन अगर किसी वर्ड के साथ अटैच करेंगे तो इट इट वोंट बी ए, इट विल बी ए। ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट द ABC, तो आप लोगों ने गौर से सुनना है और इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। अभी मैं आप लोगों में से इंडिविजुअली लोगों को पिक करूंगा, एंड आई विल आस्क देम लाइक टू से ABC द वे आई सेड इट। ओके, सो इट्स ए नहीं होगा, A B आई C D E F। F नहीं होगा, F G H। ये H नहीं है, ये H, AITCH। मैं आप लोगों को भेजूंगा अभी, इस ट्रेनिंग का हम सेपरेट ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर मैं कुछ रिटन मटेरियल भी भेजूंगा आपको। क्या आपने ABC जब पढ़नी है तो आपने उसमें H कैसे लिखा होगा, AITCH लिखा होगा, ताकि प्रैक्टिस करने में आपको आसानी हो। सो H आई नहीं होता, आए। आए जिस तरह EY ई होता है ना, आए, ये वो वाला आए। आए। जय, ये जे नहीं होता, जय। जय। अच्छा, फिर के है, ये बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड है, और इसका आपने खास ख्याल रखना है। इट्स नॉट के इन अमेरिकन इंग्लिश, इज खे। ये खे की साउंड निकालेगा। पंजाबी में कहते हैं ना खे, ये वो वाली खे की साउंड निकालेगा। काफ और दो आंखों वाली हे, अगर आप में से किसी ने उर्दू पढ़ी है। सो खे, इट्स नॉट के, इट्स खे। फिर LM N O। ओ की बारी में आपके जो लिप्स हैं वो राउंड शेप में आएंगे, ओ। फिर आगे आता है P। इट्स नॉट P, इट्स फी। Phe, राइट। के का हमने कहा था, के इज नॉट अ के, इज खे। पी इज नॉट अ पी। आज से पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रह गया, अब ये पाकिस्तान हो गया। ठीक है। फी, फी का साउंड आएगा इसमें, फी। खियाऊ, खियाऊ, ये खियाऊ भी जो है ना, वो उसमें जो वो स्नूकर की कहते हैं तो क्यू होती है, एक क्यू स्टिक होती है, तो वो क्यू। क्यू। आर। आर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये आपकी आवाज में खूबसूरती को बनाता है। सही, ठीक है। सो आर की बारे में आपकी जो टंग है, ये ट्विस्ट होके या अप लगनी चाहिए या डाउन लगनी चाहिए। ये आर, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आर, आपकी जो जुबान है वो अपर साइड ऑफ योर तालू जिसे कहते हैं हम, उसके साथ टच कर रही होगी। आर। आर। एस। थी, ये टी नहीं है, थी। टी, THEE। RSTUVWXYZ। अब मैं दोबारा से पढ़ूंगा, अब मैं फ्लो में पढ़ूंगा, आप लोग वर्ड को सुनते रहिएगा। सही है। ABCDEFGHILMNOPQRSTUVWXYZ। सो ये आपने इसमें जो मोस्टली वर्ड्स हैं जिनका ख्याल आपने रखना है, उसमें एक थी है, एक फी है, एक खे है, एक क्यू है, और एक आर है। ये वो वर्ड्स हैं जिनका आपने खास ख्याल रखना है कि जब भी आपने इन वर्ड्स को कहना है तो उसमें ये साउंड्स आपके निकलनी चाहिए। के में साउंड निकलनी चाहिए खे,
पी में निकलनी चाहिए फी, टी में निकलनी चाहिए ठी, और आर, टचिंग योर टंग शुड टच अपर और लोअर साइड ऑफ योर माउथ, एंड देन उसके बाद और कौन सा वर्ड था? पी क्यू आर एस के, O, I'm sorry, what was that? O. R, okay. All right, so now I would request all of you to just repeat once so I understand like you people have heard about it. So Mir Hamza, can you speak? Let's go to the next one. Who is Samsung SM? जी सर। जी आप जरा काइंडली ABC पढ़िए। जी जी। A, B, C, D, E, F, G, H, हम्म जी ओके, कंटिन्यू। जी सर। बोलें बोलें आगे बोलें, जी के बाद आगे बोलें। H, हम्म ओके, नेक्स्ट। I. कंप्लीट करें ना ABC को। ओके सर। A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, हम्म L M L, M, N, O O, S, T, P आगे P। हाँ E, T, R, हम्म S, ओके ओके, U. लेट्स मूव। अच्छा मैं कौन करेक्शन करना चाहिए, कौन कौन से वर्ड सही नहीं बोले इन्होंने? मतलब पी फी और टी हम्म को थी, हम्म ई को थी नहीं बोला, और पी को ही, और इसके अलावा आई आए, एच को हम्म एच नहीं पढ़ा। हाँ वेरी नाइस। और अच्छा आपका नाम क्या है? सैमसंग SM, आपका नाम क्या है? Yes, sir. अली हसन। अच्छा अली हसन, आपने चूंकि पहली बार प्रैक्टिस की है सो इट टेक्स अ लिटिल टाइम। सो बहुत से वर्ड्स हैं, ए को आपने ए नहीं पढ़ना, ए ही पढ़ना है। वो जब हम किसी वर्ड के साथ अटैच करेंगे फिर आपने ए होगा, फिर उसके बाद आपने एच एच बोलना है, एच नहीं बोलना, एच। फिर आपने आए H. बोलना है, आए, जय, आई नहीं बोलना, सही है। लेट्स मूव टू द Yes, नेक्स्ट वन। सो लेट कंक्लूड करके मैं बताऊंगा आप लोगों को। तलहा उमर का क्या? तलहा उमर, आप जरा शुरू करें। ए ए बी सी डी ई एफ आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई सी। अच्छा कौन सा वर्ड इन्होंने मिस किया है? somebody can tell? एक एच मिस किया आपने, फी नहीं बोला आपने, पी, और ख्यू ख्यू नहीं बोला, क्यू बोला है आपने, ख्यू। ये वर्ड है, बाकी मैं बताता हूँ आपको। लेट्स गो टू शाजिया। It's A, B, C, D, E, F, H, I, K, L, M, N, O, P, Q,
T U V W X Y Z. सो जिस तरह अलिफ बा ता हम लोग भूल जाते थे ना बीच में से कई वर्ड्स, यहाँ पे तो इंग्लिश में कई वर्ड्स भूलते जा रहे हैं आप लोग। आपने जी जी नहीं But पढ़ा। sir, I will just tell you, it's R. if you never mind, it's these are letters and not words. Letters, yeah. Thank you for the correction. Yes, these are the letters. So we are forgetting about the letters. I mean, the way we forget this in Yes, Urdu, alif be te mein. So people are forgetting it. Anyways, no problem. Let's go to Mama Abdullah. natural. Abdullah. Yeah, it is natural. Abdullah Ahad. Yes, sir. Yes, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Z. Q, R, S, STUV सारा T, बीच में। U, Anyways, no V. problem. ठीक। अच्छा, आपने वो देसी देसी अंदाज में पढ़ी है अभी, ABC जैसे हम पढ़ते हैं। नूर, आप पढ़िए जरा। Noor, are you there? Yes, yes. Can you hear me? Yes, now we can hear you. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z. Okay, all right. But this is kind of a desi style. I mean, you missed a few words that you were asked to speak in a different way. Anyways, no problem. That's the first time. So Shafi Muhammad, Yes, sir. yes, please go ahead. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. And P and T says T. Few words you said very good. Few letters they were missing. I'm sorry, who was that? I am Amir Hamza. I am reading Yes, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, all right. Acha ji, next Vivo. If somebody's left, so that person can unmute and can start speaking. Hi, Kaisar Amir here. Vivo V30. Okay, Kasser, how are you doing? I'm fine. I repeat Yes, it. Kasser, please go ahead. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. ओके ऑलराइट। अच्छा, मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ कॉमन जो मिस्टेक्स आप सब लोगों ने किए हैं वो मैं आपके साथ रिपीट करता हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं बताता हूँ। अच्छा, पेन एंड पेपर सबके पास है? एवरीबॉडी हैज अ पेन एंड पेपर? No, sir.
ओके, सो मस्ट कैरी पेन एंड पेपर विद यू एवरी डे। मैं इसकी जो एक रिकॉर्डिंग है वो मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, ताकि आफ्टर द ट्रेनिंग जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा होगा उसके अंदर जब ये वॉइस मैसेज आप बार बार सुनेंगे, सो प्रैक्टिस करके उसको आप इम्प्लीमेंट करना आसान होगा। जब तक हमारी ABC ठीक नहीं होगी ना, तो हमारे लेटर्स ठीक नहीं होंगे तो वर्ड्स ठीक नहीं हो सकते हैं। सो ओके हमें सर। पहले अपने लेटर्स को ठीक करना है, देन फिर हमें जो हमें हेल्प करेंगे हमारे वर्ड्स को सही करने में। आप लोगों में से माशाल्लाह सब लोगों को इंग्लिश में, वो फिर आगे हम फर्दर चलेंगे, अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे इंग्लिश में। फिर आपको एक आपको टॉपिक मिला करेगा जिसके ऊपर आपने बोलना हुआ करेगा, समथिंग्स लाइक दैट, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी इंग्लिश, एक बात याद रखिएगा, ये जितनी ज्यादा बोलने से आती है और किसी मीडियम से नहीं आती, ना सुनने से आती है, ना मूवीज देखने से आती है, ना ही आप किसी को बात करते हुए देख रहे हो और डेली और बैठ के, तो नहीं, ऐसे नहीं। आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी स्पोकन में आपके बोलने से। सो एटलीस्ट 1 घंटा आप लोगों ने सबने डेली बेसिस पे निकालना है, जिसके अंदर आपने इंग्लिश बोलनी है। एक और मैं आपको बड़ी जबरदस्त टिप बताता हूँ, कोई भी लैंग्वेज आपने इंप्रूव करनी हो तो उसकी सबसे बड़ी टिप जो होती है ना, वो ये होती है कि स्टार्ट थिंकिंग इन दैट लैंग्वेज, स्टार्ट थिंकिंग इन दैट लैंग्वेज। अब आप कल आके खुद मुझे बताएंगे सर कि कल के सेशन से हमें काफी सारी चीजें ऐसी जो पहले नहीं पता थी। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं अपने दिन की रूटीन जो मैं काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू द किचन टू ब्रिंग समथिंग टू ईट फॉर मी, आई एम गोइंग डाउनस्टेयर, आई एम गोइंग आउट, आई एम कमिंग बैक फ्रॉम माई कॉलेज यूनिवर्सिटी, आई एम कमिंग बैक फ्रॉम माई जॉब। सो जो भी आप सोच रहे हैं ना, उसको सोचना इंग्लिश में शुरू कर दें आपसे, ताकि आपकी जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो इंग्लिश में बनते जाएं। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, सो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश नाउ। फॉर एग्जांपल, I'm taking this class. After this class, I'm gonna go out and I'm gonna have some drinks. Then when I come back, I have to go to the bed by 12 a.m. That's the maximum time that I have to be in the bed. So this kind of things, like इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें आपसे, इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं, ABC हम पक्की हो जाएगी, लेटर्स हमारे ठीक हो जाएंगे, फिर हम वर्ड्स की तरफ आएंगे, सेंटेंसेस की तरफ आएंगे। फिर एक जिसे कहते हैं ना क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव स्पोकन, हम उसकी तरफ आएंगे, फिर चीजें हम डिफरेंट कर रहे होंगे। सो इंशाल्लाह विद इन अ वीक आप लोगों को डिफरेंस नजर आएगा फ्रॉम द day 1 and the day 7. It will tell you like you guys have spent a very quality time here. What my request is that you guys, every one of you, should pay attention, focus, and practice what I'm asking you to practice. All right. Success story is मैंने आप लोगों को कल बताई है. Inshallah, you will be among the success stories within this 3 months time, inshallah ताला. जिस तरह शाजिया की कम्युनिकेशन अच्छी है, एक्सपीरियंस भी है, एक्सपोजर भी है, कैसर को मैं जानता हूँ, उनका एक्सपीरियंस एक्सपोजर है. So these people can get jobs early. I mean, they might be getting the jobs in the second month, or might be in the start of the third month. So it happens, some of the students, they pick their first job in the first month. So we'll guide coach and with each and every step. What my request from you guys is to give your best shot to this. Think about, like, you are investing this time, you are investing money just for your improvement to earn more. ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कुछ और कमाने के लिए, इस इन्वेस्टमेंट से आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो ये जहन में रखना आप लोगों ने, और प्रैक्टिस करनी है, तो चीजें इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली आपके वे पे चलेंगी। अब हम चलते हैं, इसका मैं दोबारा से बताता हूँ, जो वर्ड्स मोस्ट ख्याल रखने वाले वर्ड्स हैं वो जहन में रखिएगा, मेरे साथ साथ रिपीट करते जाइएगा, चाहे म्यूट करके चाहे अनम्यूट करके। इसमें एक वर्ड है खे। सबसे पहला वर्ड जो ख्याल रखने वाला, वो खे। के नहीं कहना, खे। मैंने पंजाबी में मिसाल बताई थी, खे की सिर च खे पवा के आ गया, काइंड ऑफ सो यू रिमेंबर दिस। खे 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 खे। ठीक है, फिर आई नहीं बोलना, इट्स नॉट आई। आप लोगों ने से तकरीबन सबने आई बोला है, इट्स आए। आई नहीं है, आए। जैसे कहते हैं ना, मेहमान आए, तो दिस इज काइंड ऑफ आए। फिर जे नहीं है, ये जय है, जय। वो मूवीज में नाम आता है ना, जय, JAY, जय। ठीक है, आई, जय, खे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आ रहे हैं, तो आपका वर्ड आता है फी। ये पी नहीं है, इट्स फी। ठीक है, इट्स फी। फिर उसके बाद अगर हम आगे वर्ड्स आ जाएं, तो टी नहीं है, इट्स थी। टी नहीं है, इट्स थी, थी। क्यू नहीं है, इट्स क्यू, क्यू। खे की आवाज के साथ क्यू। ठीक है, आए, जय, थे, थी, थी। पी नहीं है, फी। क्याऊ,
क्यू आर में आपकी टंग जो है वो अप साइड पे या डाउन साइड पे लगेगी, सही है। सो ये वो चीजें हैं जिनका आपने खास ख्याल रखना है, ये वो वर्ड्स हैं जिनका आपने खास ख्याल रखना है, जिनकी प्रैक्टिस आपने करनी है। सो वंस यू प्रैक्टिस दीज वर्ड्स, जब आपके ये वर्ड्स सॉरी ये लेटर्स जो आपके हैं ये पक्के हो जाएंगे, सो देन आपके वर्ड्स की तरफ हम जाएंगे एंड यू नो दे आर गोना बी द बेस्ट इंशाल्लाह ताला। सो विद इन अ वीक यू विल फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर कम्युनिकेशन लैंग्वेज। जो आप ऑलरेडी बोलते हैं और जो थोड़ा बोलेंगे तो फिर लोग आपको सुनना चाहेंगे। फिर आप लोग पहले थोड़ा शाय फील होगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो शाइनेस दूर हो जाएगी और आप जो है वो चीजें बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, सही है। सो आज की असाइनमेंट के ताकि फर्स्ट डे था और ये आज की असाइनमेंट जो है वो इन इन लेटर्स को पक्का करना है। इसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है मैं आपको भेज दूंगा। आपने ख्याल रखना है गिनती के लफ्ज हैं आई जे खे खे थी क्यू आर, ये 7 वर्ड्स हैं जिन पे ज्यादा फोकस आपने करना है। फोकस सब पे करना है लेकिन इन वर्ड्स के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। जब आपके ये वर्ड्स ठीक हो जाएंगे तो आप समझेंगे कि आपकी जो इंग्लिश है उसका मोस्ट पार्ट जो है वो सही हो गया। फिर उसके बाद जब हम वर्ड्स की तरफ जाएंगे आफ्टर लेटर्स एंड देन सेंटेंसेस, सो आई विल गिव यू सम टिप्स। कुछ वर्ड्स मैं बताऊंगा कि वो कैसे प्रोनाउंस होते हैं, आपने उनको वैसे प्रोनाउंस करना है। पहले आप उनको बोलते रहते हैं बट जब आप उनको थोड़ा चेंज करेंगे आपको खुद फील होगा अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुन के कि यार नहीं ये पहले से जो है ना वो काफी डिफरेंस इसके अंदर है। सो आई थिंक वी शुड कॉल ऑफ for today because I don't want to give you a lot of work. Once I'll see like how you guys put in efforts, जो आपको असाइनमेंट दी जाती है और उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, फिर उसके बाद हम इसके मजीद असाइनमेंट्स में जो है वो मजीद चीजें ऐड करते जाएंगे। लेकिन जब तक ABC ठीक नहीं होगी तब तक हमारी इंग्लिश ठीक नहीं हो सकती। हम वर्ड्स को पिक कर लेंगे, बीच में बोलना शुरू कर देंगे लेकिन कहीं ना कहीं जाके फिर पकड़े जाएंगे, नहीं ये वर्ड सही नहीं बोल रहा। सो अब आपने कई कई लोगों ने देखे एच ही पढ़ा है शुरू से लेके अभी तक, ठीक है। हमने भी पहले एच ही पढ़ा था जब तक हमने ये ट्रेनिंग नहीं की हुई थी। फिर उसके बाद हमने आई पढ़ा है, आई नहीं पढ़ा। फिर हमने खे नहीं पढ़ा, के पढ़ा है। सो इट हैपेंस बट वी नाउ वी नीड टू चेंज, ठीक है। सो ये इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करके आना है। कल इंडिविजुअली हर बंदे ने पूरी ABC विदाउट एनी मिस्टेक जो है वो सुनानी है यहाँ पे सबके सामने। सो मेक श्योर यू गिव टाइम। बाकी अगर ग्रुप में भी आप रिकॉर्ड करके भेजना चाहेंगे, हाँ सर देखें इसमें सही हो गया, सो विल गिव यू द आंसर ओवर देयर एज वेल बिकॉज this is not kind of only training, this is the entire package, the 360-degree covering your all questions, their answers, and then if there are any concerns in your minds you can discuss them always. So we'll have two-way communication, so like this way you're not only the listeners but I want you to be the speakers and I'll be happy to be a listener, ठीक है। if you guys have any question, आज की असाइनमेंट मैं क्यों छोटी रख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे ही है कि ये जैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं ना तो उसमें स्टेप्स होते हैं, तो ये पहला स्टेप है जो हमने क्रॉस करना है तो फिर अगले स्टेप की तरफ जाना है हमने। सो इसमें परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, सही है सर। जी। सर प्लीज रिपीट वर्ड कौन कौन से हैं? एच जे आई आई जे के टी टी क्यू आर। मैं ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बनने जाएगा उसमें मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा रिकॉर्ड करके, ताकि आप बार बार सुन के इसको प्रैक्टिस करके जो है वो परफेक्ट कर सकें, ठीक है। एनीबॉडी एल्स, किसी का क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। Anyone, if you have any questions, you can ask, or we should call up for today. So start thinking in English. This is the takeaway from this course. Start thinking in English. Whenever you think about something, I mean, going to even to the market, just think like I'm going to the market. ठीक है, ये sentence अपनी thinking में लेके आए। फिर अगर आप जा रहे हैं सोने के लिए, I'm going to the bed to sleep. फिर उसके अलावा I'm going to the kitchen to bring something to eat. So start thinking in English. Then letters in A, B, C, and 7 letters, they need to be very much taken care of. Thirdly, start giving at least 1 hour to yourself for English improvement. All right? Okay. So Okay, कल sir. से
कल से क्वाइट जगह पे बैठना है आप लोगों ने, जहाँ पे आपके पास शोर शराबा ना हो। कल से हम माइक्स को अनम्यूट रखेंगे, and I'll ask the questions during the meeting, so that like every one of you is attentive, listening attentively, and actually participating in the training. So this was the first day. I didn't go with that, but my rules are a little strict because I want you guys to learn, and this is for your improvement. So I want you to be involved into this, training. As I already said, like I don't want to be a one-way communication, but it would be a two-way communication. So कल से आप लोगों ने क्वाइट जगह पे बैठना है, साइलेंट जगह पे बैठना है, और आप लोगों को बीच में मैं जब पार्टिसिपेशन के लिए कॉल करूंगा, so you will be readily available. ठीक है? Okay, sir. Any other questions if we have, or should we call it off? ये क्लास हमारी जो यूजुअली हुआ करेगी ना, वो 1 से 1.5 घंटे के दरमियान किसी टाइम पे भी, या 2 घंटे की भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा उस दिन टॉपिक क्या है। चूंकि ये क्लास हमारी स्मॉल इसलिए है कि मैंने जैसे पहले रिपीट किया था कि ABC जो बेसिक्स हैं, अगर हमने उसको ठीक, अब आप सबने देख लिया कि आप सबकी बेसिक्स में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द अमेरिकन नेटिव इंग्लिश, क्योंकि हमें बताई नहीं गई पहले। उसको हमने कवर करके फिर नेक्स्ट हमने आगे जो है वो दूसरे तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे हम, ठीक है? All right, everyone. So it's really nice meeting with all of you. So अभी Sir, मैं I have one question. I have yes, one please. question. Yes, Yes, please. I want to ask that will you teach us some digital skills also after teaching Yes, we English? will. Yes, we will. We'll definitely do that. Whoever will be Okay. good in analytical skills, they'll go for that training. Somebody who's good in graphic designing, so he can go there as well. If somebody is good in data analysis, the latest Microsoft tools, we can take that towards that thing. If somebody is interested in automation, so we can do that as well. But it depends. But the first step, the first step of the ladder is your communication. Okay, thanks. You're welcome. You're welcome. All right, everyone. So see you guys tomorrow, inshallah. Same time, 8:30 Pakistan time. And as I already requested, keep quiet, calm place, and you'll be unmuted. You'll be talking tomorrow. कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं. We all are family. So just यही सोचना है कि मैंने अपने आप को improve करना है, और कोई भी काम शुरू में होता है तो उसके अंदर वो निखार नहीं होता जो कि with the passage of time आता है. सही है? Okay. So see you guys tomorrow then, inshallah. Have a great time ahead.